Hello everyone, good evening. Hope so you all are good and have enjoyed your weekend. Have enjoyed your Saturday, Sunday. Okay, so after your weekend, we are here to study our concept of capital receipts. And before that, I want to wish you all happy Janmashtami, everyone. Happy Janmashtami. Okay, so as you all know, in last lecture, we have seen about the budget, the major components of budget. See, we have seen there are actually we have seen three budget basically: revenue, capital, and expenditure. Just we have seen the meaning first. After that, we have started with the components of budget, major components of the revenue and capital budget. Okay, in that we have seen the components of revenue budget in the last lecture. In the last lecture, we have seen the major components of which budget? Revenue budget. In short, we will have the revision. Okay, as we have seen, the revenue budget is having major two components. Okay, that is what revenue receipts and revenue expenditure. As the name suggests, revenue budget, that means it will deal with revenue receipts and revenue expenditure. And whenever we talk about revenue receipts and revenue expenditure, that means they are recurring receipts and recurring expenditure. Okay, and revenue receipts considers of tax and non-tax revenue. And in tax we are having two types of the tax, that is what direct and indirect. Okay, and in non-tax revenue we are having interest, grants, fees, gifts, penalties. These were all we are having in non-tax revenue. Okay, okay, so this much we have seen. After that, we have seen revenue expenditure, the expenditure which are repetitive in nature. That is what salaries, interest are repetitive expenditure for government. So this was all about your revenue budget. Is there any doubt in revenue budget? And I want to know from you all guys, did the revenue budget create any type of expenditure or asset or what? Sorry, did the revenue budget creates any type of asset or reduce the liability or what? Tell me fast. Did the revenue expenditure creates any type of asset or reduce any type of liability or what? We have seen this. The revenue expenditure does not create any type of asset or does not reduce any type of liability. Okay. Yes, very good, Siddhi. Very good, everyone. Everyone has given the correct answer. Okay. After that, today we are going to start with capital budget. As the name suggests, we are talking about capital budget. So here we will consider the capital receipts and capital expenditure. See, in a very proper sequence we have started with. As first we have studied the meaning of receipts and expenditure. After that we have started with the budgets, revenue, capital and expenditure. And after that we have seen the components of revenue and capital budget. So components means what do you consist in revenue and capital budget. So we have seen what are the components of revenue budget, what you have to consider while calculating revenue budget. Okay, tax, non-tax, direct, indirect, gift, grants, penalties, yes, all of the things you have seen in revenue budget. Now today we are going to start with capital budget, and as the name suggests, here you will consider capital receipts and capital expenditure. And when we talk about capital receipts and capital expenditure, that means these are the receipts and expenditure which are non-recurring in nature. These are the receipts and expenditure which are non-recurring in nature. They do not recur repetitively. Okay. Capital budget is one of the two parts of the government budget. Yes. Generally, the budget is divided into revenue budget and capital budget. Yes, actually, the budget is divided into two, revenue and capital. So, it is the second part. As revenue, we have studied. The budget is having two important parts, revenue and capital. So, revenue we have studied. Now, we are studying the second important budget, that is what capital budget. This classification is made by considering the items that comes under two budget components. Capital budget is considered to be productive as it shows the investment type activities of the government. Yes, as these are the non-recurring activities, so here they will show investment type activities. Here it will be like investment type activities. And here we are going to consider capital receipts and capital expenditure. So under the capital budget,
you are going to consider capital receipts and capital expenditure. Okay, now we will study one by one. Okay, capital budget consists of capital receipts and payments. Yes, it consists of capital receipts and payments. So capital receipts are, now you will ask me, what are the capital receipts? What do you mean by capital receipts? So capital receipts are loan raised by government from public are called market loans, borrowing by government from Reserve Bank of India and other parties through sale of treasury bill, loan received from the foreign government and bodies. इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करते हो तो उसको मैं कैपिटल रिसीप्ट कहूंगी. आपने रिजर्व बैंक से पैसा लिया है, दूसरी बैंक से पैसा लिया है, बाहर की गवर्नमेंट से पैसा लिया है, बोरोइंग की है, या फिर आपने पब्लिक से पैसा लिया है, कुछ भी किया है, उसको मैं क्या कहूंगी? कैपिटल रिसीप्ट्स कहूंगी. क्योंकि मैं रोज रोज लोगों से लोन नहीं मांगती, मैं रोज रोज अपनी एसेट्स नहीं बेचती, ये कभी कभी होता है. तो ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स होती है, जहाँ पे मैं लोन मांगती हूँ, बोरोइंग मांगती हूँ, बैंक से, आरबीआई से, पब्लिक से. जब इन लोगों से मैं पैसा मांग के लाती हूँ तो मैं इसको क्या कहती हूँ? कैपिटल रिसिप्ट. और मैम इसको रिसिप्ट क्यों कहा जा रहा है? अरे पैसा आया ना रे बाबा. रिसिप्ट मतलब क्या? पैसा आना, गवर्नमेंट के पास पैसा आना. तो ये सारे तरीकों से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लेकिन ये रोज आता है क्या? क्या ये टैक्स की तरह रेगुलर है क्या? जब जरूरत पड़ेगी तब. तो इसको क्या कहा जाता है? कैपिटल रिसीप्ट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कैपिटल रिसीप्ट. और इसके अलावा जो सेकंड कैपिटल रिसीप्ट है वो है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट. क्या किसी को पता है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट क्या होती है? रिसीप्ट बाद में बताना, पहले ये बताओ क्या आप लोगों को पता है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब? डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट डज द वर्ड सजेस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर लेना. ओके, शेयर्स बेच देना. यस, आशीष इज राइट, शेयर्स बेच देना. सी व्हेन यू आर हैविंग सी गवर्नमेंट इज हैविंग इट्स एसेट, उसके गवर्नमेंट के पास अपने एसेट्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं. तो जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच देती है तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या करना? पैसे लगाना. और जब पैसे निकाल लोगे तो उसको क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे. जैसे गवर्नमेंट ने टेलीकॉम के शेयर्स बेच दिए थे तो वो क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट था. जैसे गवर्नमेंट अपनी कोई कंपनी के शेयर्स बेच देगी तो उसको क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे. समझ में आया क्या? अरे लेकिन पैसा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि तुम शेयर्स बेचोगे, फुकड़ में बेचोगे क्या? नहीं, पैसे शेयर्स बेचे तो उसके रिटर्न में क्या आया? पैसा आया. उसको क्या कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. तो पहला तरीका लोन, दूसरा तरीका डिसइन्वेस्टमेंट, और तीसरा तरीका रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम स्टेट, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज. अरे हमेशा अपन लोन लेते ही थोड़ी ना है, अपन ने कुछ लोन देके भी तो रखे होंगे, तो उनकी भी तो रिकवरी होती है. जब वो लोन की रिकवरी होके पैसा मेरे पास आता है तो वो भी मेरी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है. अब रोज रोज थोड़ी रिकवरी होती है लोन की, रिपीटेटिव नेचर का वो थोड़ी नहीं है इनकम, मेरी कभी कभी होने वाली इनकम है. तो ये तीन तरीके से कैपिटल रिसीव्ड गवर्नमेंट के पास क्या होती है बेटा? जनरेट होती है. तो पहली क्या थी? लोन, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, और तीसरा रिकवरी ऑफ लोन. समझा यहाँ तक के? वेरी गुड. वन सेकेंड. कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर. अब रिसिप्ट्स की तो बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे? एक्सपेंडिचर की. तो अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक्सेट्रा, एंड लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशन एंड अदर पार्टीज, ये आपके क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं. जैसे आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये आपका क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है. रोज रोज लैंड खरीदते क्या? रोज रोज बिल्डिंग खरीदते क्या? नहीं ना, कभी कभी करते ना. समझ में आया? तो वो आपका क्या रहेगा? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर. लेकिन अब मेरे को आप लोग यहाँ पे सोच के बताओगे, क्या कैपिटल और रिसीप्ट से
असेट्स और लाइबिलिटी में कोई चेंज आएगा क्या? अगर कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट्स और लाइबिलिटी में कोई चेंज आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। यहाँ पे जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उससे क्या हो रहा है? आपकी एसेट्स क्रिएट हो रही है। अरे बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदा, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन किया, रोड बनाए, भले ही मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन असेट भी तो क्रिएट हुई ना। either there will be increase in assets or decrease in liability. समझ में आया क्या? समझा क्या? समझा आप लोगों को? समझा बेटा? ओके। और आप जब लोन वगैरह लेते हो तो लाइबिलिटी भी तो क्रिएट हो रही है ना, क्योंकि आपने लोन लिया, तो यहाँ पे लाइबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है और असेट भी क्रिएट हो सकता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे असेट और लाइबिलिटी दोनों में क्या होता है? चेंज होता है। समझ में आया क्या? तो जब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या हुआ? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपकी असेट क्रिएट हुई। समझ में आया क्या? तो ये क्या था आपका कैपिटल बजट, ये क्या था आपका कैपिटल बजट। और आज मैं सोच के आई थी कि मैं आप लोगों को इस चीज का ना एक बहुत ब्रीफ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन दूंगी। देखो बहुत ध्यान से देखना, एक समरी बना रहे हैं अपन लोग और वो समरी आप लोग भी बनाओ, ठीक है? मैं बात कर रही थी बजट की, और बजट में मेरे पास थी 3 चीजें। कितनी चीजें थी? 3। रेवेन्यू, कैपिटल और एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो रेवेन्यू में 2 बातें। रेवेन्यू में कितनी बातें? 2 बातें। कैपिटल में भी 2 बातें। रेवेन्यू क्या बोल रहा था? दूसरा कलर। रेवेन्यू क्या बोल रहा था? रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या बोल रहा था? कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर बजट वाज वेरी इजी, उसका सिंपल सा मीनिंग था सारे एक्सपेंडिचर्स को कवर करके स्टेटमेंट में दिखाना है। और यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट्स भी आएगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स भी आपका यही आता है। जमा यहाँ तक के? ओके। रेवेन्यू रिसिप्ट में कितने तरीके की रिसिप्ट मैम? 2। कौन सी? मैम टैक्स और मैम नॉन टैक्स। मैम टैक्स में भी 2 तरीके के टैक्स, एक डायरेक्ट और दूसरा मैम इनडायरेक्ट। फिर नॉन टैक्स में इंटरेस्ट, फाइन, फीस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डिविडेंड। ओके मैम, बराबर है ना? फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डेली होने वाले खर्चे, वो क्या था आपका? सैलरी। और इससे ना तो आपका कोई असेट क्रिएट हो रहा था और ना तो कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही थी। फिर हमने बात करी कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट में आया आपका लोन। फिर क्या था? अरे बाबा सेकंड वाला क्या था? याद दिलाओ, तुमको याद नहीं आ रहा। लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। फिर क्या था? रिकवरी ऑफ लोन। फिर आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? किस चीज में खर्चा कर रहे थे हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे थे, वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कर रहे थे। हम क्या क्या करने में? असेट बनाने में, असेट क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग कौन सी? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये था। अब इस बजट का पिक्चर देखो आप, जम रहा है? हो गया क्रिस्टल क्लियर?
समझ में आ गया हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा? समझ में आ गया सब लोगों को? समझा गया रे बाबा? ये चार्ट आप लोग भी बना लीजिएगा। तो हमने कितने टाइप्स के बजट पढ़े? 3, रेवेन्यू, कैपिटल और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट में 2 बातें, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में 2 बातें, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उधर तीसरा वाला क्या, एक्सपेंडिचर बजट। इज इट क्लियर? Is it clear till here? Everyone, please let me know in the chat box. Fast, quickly, answer. Is it clear till here? All clear? Everything? ये चार्ट से और क्लियर हो गया कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा? वेरी गुड। और अब हमारे इस टॉपिक का एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, वो भी बहुत इजी है, जिसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। जिसका नाम क्या है? फिस्कल डेफिसिट। नाम में ही डेफिसिट है, मतलब कुछ तो भी कमी है, क्योंकि वर्ड क्या यूज हो रहा है? डेफिसिट, मतलब कुछ तो भी कमी है। तो सुनो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब इनकम का क्या होता है? शॉर्टफॉल होता है। इनकम कम और खर्चे ज्यादा। जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर देता है और इनकम कम पड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। देखो, या तो 2 तरीके से डेफिसिट होगा, या तो इनकम हुई ही कम, इनकम कम हुई इसलिए डेफिसिट, और दूसरा या तो ये है कि गवर्नमेंट ने खर्चे बहुत ज्यादा कर दिए इसलिए क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। तो उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इनकम कम और गवर्नमेंट ने कर दिए खर्चे ज्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। शॉर्टफॉल आ गया ना रे, इनकम का शॉर्टफॉल आ गया, क्योंकि इनकम कम है और खर्चे क्या है? ज्यादा है, तो देयर विल बी अ शॉर्टफॉल। गॉट इट? सो अ फिस्कल डेफिसिट इज अ शॉर्टफॉल इन अ गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग। मतलब इनकम क्या हो गई? शॉर्ट हो गई इन फ्रंट ऑफ स्पेंडिंग। खर्चों के आगे इनकम क्या पड़ गई मेरी? शॉर्ट पड़ गई। The government that has a fiscal deficit is spending beyond its means. जो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में है, इसका मतलब वो अपनी औकात के बाहर जाके खर्चा कर रही है। उसके पास मीन्स इतने हैं, मीन्स मतलब रिसोर्सेस, लिख लो वहां पे, बाद में याद नहीं रहता। मीन्स मतलब रिसोर्सेस, उसके पास रिसोर्सेस इतने हैं और वो खर्चा इतना कर रही है। That means you are doing expenses beyond your means, beyond your resources. अपने रिसोर्सेज से ज्यादा, जितनी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और गवर्नमेंट को ये फेस करना पड़ता है अगर खर्चा बहुत ज्यादा है और इनकम बहुत कम है। गॉट इट? A fiscal deficit is calculated as a percentage of GDP. What did they say? कि fiscal deficit को आप calculate करते हो as the percentage of GDP. GDP के अकॉर्डिंगली आप फिस्कल डेफिसिट के परसेंटेज को क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। और सिंपली एज टोटल डॉलर स्पेंड्स इन एक्सेस ऑफ द इनकम। और सिंपली अगर देखा जाए तो इनकम, जैसे इतनी मेरी इनकम है और इतना एक्सेस आपने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया। मतलब यहाँ मेरी इनकम थी, यहाँ आपका एक्सपेंडिचर है, तो जितना आपने एक्सेस स्पेंड किया वो आपका क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। जितने से आपने एक्सेस स्पेंड किया वो आपका क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। In either case, the income figure includes only taxes and other revenues and excludes money borrowed to make up the shortfall. उन्होंने क्या बोला? ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे आपका इनकम फिगर रहेगा उसमें आप सिर्फ टैक्स और अदर रेवेन्यूज को इंक्लूड करोगे और मनी बोरोड को इंक्लूड नहीं करोगे अगर आपको प्रॉपर शॉर्टफॉल निकालना है तो। क्योंकि बोरोड तो बोरोइंग हो गई ना, वो कमाई थोड़ी थी, वो इनकम थोड़ी थी, वो तो बोरोइंग थी। जबकि इनकम में आप रिसिप्ट्स को भी कंसीडर करते हो, बराबर? कोई भी रिसिप्ट हो, बोरोइंग रिसिप्ट को भी कंसीडर करते हो इनकम में। लेकिन जब एक्चुअली आपको शॉर्टफॉल देखना है, इनकम का शॉर्टफॉल देखना है, तो आप सिर्फ टैक्स और अदर रेवेन्यूज को कंसीडर करोगे और आप बोरोड मनी को शॉर्टफॉल कैलकुलेट करते समय कंसीडर नहीं करोगे। ये समझा क्या पॉइंट? बताओ अगर मेरे को, तभी मैं आगे बढ़ती। ये पॉइंट समझा क्या कि एक बार और बोलो? वैसे बहुत क्लियर है। उनका बोलना ये है कि बोरोइंग को अभी फिस्कल डेफिसिट का शॉर्टफॉल कैलकुलेट करते समय कंसीडर मत करो क्योंकि वो तुम्हारी बोरोइंग है। ठीक है? हाँ सीधी सुन, उनका बोलना क्या है? आपको क्या देखना है कि इनकम कितने से शॉर्टफॉल है,
तो इनकम शॉर्टफॉल कितने से देखना है ना, तो वो इनकम में सिर्फ टैक्स और अदर रेवेन्यूज को इंक्लूड करो, बोरोइंग्स को इंक्लूड मत करो। अगर आपको शॉर्टफॉल को कैलकुलेट करना है तो बोरोइंग्स को इंक्लूड मत करो, सिर्फ टैक्स और अदर रेवेन्यूज को इंक्लूड करो। अब समझा? अब समझा? ओके। इन अदर वर्ड्स, फिस्कल डेफिसिट is the difference between total income of government, total taxes and non-debt capital receipt। उन्होंने बताया कि टोटल इनकम का मतलब क्या, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते समय दो चीजों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना है, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे जो टोटल इनकम की बात उन्होंने करी है, वो टोटल इनकम में क्या इंक्लूड होगा, टोटल टैक्सेस एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स को आपको लेना है, डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स को आपको लेना नहीं है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स और टैक्सेस को लेके जो इनकम आपकी हुई है, वो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। जैसे उनका बोलने का मतलब क्या, सुनो इधर, उनके बोलने का मतलब ये है कि फिस्कल डेफिसिट आप कैलकुलेट करते हो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल इनकम में आपका आएगा टोटल टैक्सेस प्लस नॉन डेप्ट रिसीप्ट। अब समझा? अब समझा वो लाइन का मतलब कि फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कैसे होगा, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, बराबर। और टोटल इनकम में क्या इंक्लूड होगा, टोटल टैक्स प्लस नॉन डेप्ट रिसीप्ट्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? yes 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 A fiscal deficit situation occurs when the government expenditure exceeds the income। बड़ा obviously जब आपका एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज्यादा होगा, दैट मीन्स इट इज अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्या बोला मैंने, जब आपका एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज्यादा होगा, इसका मतलब ही क्या है कि आपका फिस्कल डेफिसिट का सिचुएशन आ चुका है, ठीक है। दिस डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड आल्सो इन परसेंटेज टर्म्स। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में भी कैलकुलेट करते हो और परसेंटेज टर्म्स में भी कैलकुलेट करते हो। एब्सोल्यूट मतलब इन प्रॉपर फिगर फॉर्म, और परसेंटेज तो आपको समझ ही गया, इन द परसेंटेज फॉर्म। और परसेंटेज किसका, जीडीपी का, जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में आप क्या करते हो, फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हो ऑफ द कंट्री। The high recurring fiscal deficit means that government has been spending beyond its limit। अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। क्या कहा मैंने, गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रही है, इतना खर्चा उसको नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। इसलिए कंट्री कौन सी सिचुएशन फेस कर रही है, फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन फेस कर रही है। The government describes fiscal deficit of India as excess of total disbursement from the consolidated fund of India, excluding payment of debt, total receipts into the fund excluding the debt receipts during a financial year। वो एक स्टेटमेंट में बना के डाल दिया है उन्होंने, उसका मतलब ही यही है कि वो बोल रहा है फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि आपने टोटल खर्चा कितना किया, यानी मतलब डिफरेंस बिटवीन टोटल खर्चा एंड टोटल इनकम। और टोटल इनकम में आपको डेट रिसीप्ट्स और बोरोइंग लेनी नहीं है। वापस से एक बार, ये स्टेटमेंट का भी मतलब वो ही है। फिस्कल डेफिसिट मतलब व्हाट, डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल इनकम में आपको डेट रिसीप्ट्स और बोरोइंग लेना नहीं है, सिर्फ इनकम बाय टैक्सेस और अदर रेवेन्यू लेना है। बात खत्म हो गई? यस। द एलिमेंट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स आर, क्या क्या एलिमेंट है, रेवेन्यू डेफिसिट विच इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स करंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टोटल करंट रिसीप्ट। यानी यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, फिस्कल डिफिसिट यानी पूरा बड़ा कंसेप्ट, रेवेन्यू यानी उसका पार्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या, डेफिसिट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टोटल करंट रिसीप्ट। यानी यहाँ पे रेवेन्यू रिसीप्ट्स की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। वापस से वहां पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी और टोटल रेवेन्यू की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो रेवेन्यू डेफिसिट भी कैपिटल फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू की बात हो रही थी, मतलब उसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन जब मैं बात करूं रेवेन्यू डेफिसिट की, तो
तो उसमें सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ तक के समझा? कोई डाउट? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यहाँ तक के कोई डाउट? समझा सबको? फास्ट इन चैट बॉक्स बताओ जल्दी से, समझा कि नहीं? And the another one is capital expenditure. In order to have proper understanding of fiscal deficit, it is essential to have a fair idea on government's total income and receipts. Obviously बात है, आपको पता होना चाहिए ना कि टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, तभी तो आप लोग प्रॉपरली उसको क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे, पता कर पाओगे। तो सबसे पहले आती है रेवेन्यू रिसीप्ट, ये तो हमको लेना ही है क्योंकि उन्होंने बोला टोटल इनकम में ये सारी बातें आएंगी, बराबर। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या क्या आता है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या क्या आता है। सो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आपका आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी। ये सारी बातें फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते समय इंक्लूड होगी क्योंकि ये रेवेन्यू का पार्ट है, ये इनकम का पार्ट है, ये टैक्स है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, ये टोटल इनकम में इंक्लूड होगी। नॉन टैक्स रिसीप्ट में इंटरेस्ट रिसीप्ट, डिविडेंड, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये भी मेरे अदर रेवेन्यू का पार्ट है, तो ये भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की इनकम है। और फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते समय टैक्स के अलावा भी जो अदर रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो भी इंक्लूड की जाती है। क्या बोला मैंने? फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते समय टैक्स के अलावा भी जो अदर रेवेन्यू रिसीप्ट्स है वो भी कंसिडर की जाएगी। तो ये तो किया ही जाएगा टैक्स वाला, नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी इंक्लूड किया जाएगा। और एक्सपेंडिचर कौन कौन से लेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट एंड ग्रांट्स इन एड, ये सारे एक्सपेंडिचर्स को टोटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाएगा। और ये जब हम लोगों ने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया, ये प्लस कर लिया, ये भी प्लस कर लिया, और फिर हम इसको क्या करेंगे माइनस, तो हमें पता चलेगा फिस्कल डेफिसिट कितना है। हमें क्या पता चलेगा? फिस्कल डेफिसिट कितना है। समझ में आया क्या? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस अदर रिसीव्ड, एक्सक्लूड बोरोइंग, तो मुझे मिल जाएगा मेरा फिस्कल डेफिसिट। समझ में आया क्या? मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा फिस्कल डेफिसिट। समझ में आया? If the total expenditure of the government exceeds its total revenue and non-revenue receipts in the financial year, then the gap is known as fiscal deficit of the financial year. Then the gap is known as fiscal deficit. अगर आपका खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो जितने से वो डिफरेंस आया है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। समझ में आया क्या? समझा क्या? सी देखो, उन लोगों ने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बता रही थी ना, द फिस्कल डेफिसिट इज यूजुअली मेंशन्ड एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी के परसेंटेज फॉर्म में हम लोग फिस्कल डेफिसिट को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसे? फॉर एग्जांपल, इफ द गैप बिटवीन सेंटर्स एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम इज 5 लाख करोड़ एंड कंट्री जीडीपी इज 200 लाख करोड़, तो उसको हम परसेंटेज फॉर्म में कैसा बोलेंगे कि फिस्कल डेफिसिट इज 2.5% ऑफ द जीडीपी। यानी आपका जो सेंटर्स एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम कितना है? आपका 5 लाख रुपए, और एक्चुअली में जीडीपी कितना है आपका? 200 लाख करोड़। यानी तो आपका फिस्कल डेफिसिट आपके जीडीपी का कितना परसेंट हुआ? तो फिस्कल डेफिसिट आपके जीडीपी का 2.5% हुआ। इस तरीके से आप उसको बोलेंगे। सो 2.5% इज द 2.5% is 2.5% of GDP is your fiscal deficit. कैसे बोलोगे? 2.5% of the GDP is your fiscal deficit. समझ में आया क्या? अभी कैपिटल रिसीप्ट्स में बोरोइंग आई नहीं ना, जब से चीख चीख के तो बोल रही कि बोरोइंग लेना नहीं है। कैपिटल रिसीप्ट में तो लोन और बोरोइंग आ रहा, डेट रिसीप्ट्स है ना वो, तो वो नहीं लेना है। समझा क्या? समझा? ओके। Is it clear? Is it clear to you guys? As we have completed with our chapter, what we will do is quickly in 5 to 10 minutes we will have a quick revision of this chapter. Okay?
and after that some of the MCQs we are having, so we will discuss that and we will end up with this. Okay. Okay. Okay, so we have started with this budget. Budget is given by always your finance minister, that is what today itself it is Nirmala Sitaraman, जो आप लोगों को फाइनेंस जो आप लोगों के सामने बजट प्रेजेंट करती है, क्योंकि निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और वो आपके सामने बजट प्रेजेंट करती है हर साल. ओके. ओके. बजट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी विच मीन्स वॉलेट. उसके बाद हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी कि बजट फर्स्ट टाइम कब प्रेजेंट हुआ, किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब किया, जेम्स विल्सन ने कब किया, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट पर्सन कौन थे, मिस्टर आर के शनमुखम. ठीक है. उसके बाद पहले वो सिर्फ इंग्लिश में होता था, बाद में हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया. पहले वो 5 बजे प्रेजेंट होता था, अब वो 11 बजे सुबह प्रेजेंट होता है. उसके बाद 2 लोगों ने एक भी बजट प्रेजेंट नहीं किया, नोगी एंड बहुगुणा ने. उसके बाद मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट किए, कितने, 10 बजट. ठीक है. और अभी 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि रेल बजट और यूनियन बजट साथ में प्रेजेंट किया गया, नहीं तो वो सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता था. उसके बाद आता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सबके लिए है ये रिविजन एंड टर्मिनोलॉजीज. उसमें सबसे पहला आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया. व्हाट डिड आई से? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हर साल गवर्नमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने, जिसमें वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में बांटेगा, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फंड. समझ में आया क्या? समझा? फिर उसके बाद आता है कंसोलिडेटेड फंड्स. कंसोलिडेटेड फंड्स मतलब गवर्नमेंट ने जितना भी कमाया वो इस फंड में जाएगा. ठीक है. और इसमें से गवर्नमेंट क्या करेगा, खर्चा करेगा, एक्सेप्ट दोस्त खर्चे जो कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से होंगे. बाकी देखा जाए तो सारे बेसिक खर्चे आपके कंसोलिडेटेड फंड से ही होते हैं. डिमांड फॉर ग्रांट. डिमांड फॉर ग्रांट मतलब क्या, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो आपने कंसोलिडेटेड फंड्स के जरिए एस्टिमेट किए हैं, उसको आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करोगे और उसके ऊपर वोटिंग होगी, और वो वोट्स आर्टिकल 113 के जरिए क्या किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे. एप्रोप्रिएशन बिल. एप्रोप्रिएशन बिल एक ऐसा बिल होता है जहाँ पे एप्रोप्रिएशन बिल मतलब ऐसा बिल जिस बिल के जरिए गवर्नमेंट को परमिशन मिल जाती है कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसे विड्रॉ करने की. ठीक है. तो जैसे ही आपका बजट प्रेजेंट हो जाता है, तो बजट के बाद पोस्ट डिस्कशन में गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट करती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, फिर पार्लियामेंट अप्रूवल देता है, और उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है तो गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है फॉर विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स. फिर फाइनेंस बिल अकॉर्डिंग टू 110. फाइनेंस बिल इज ऑल अबाउट व्हाट, एक मिनट रुको. फाइनेंस बिल को मनी बिल भी कहा जाता है. अगर आपको एग्जिस्टिंग टैक्स में चेंज करना है, नया टैक्स लाना है या पुराना ही कंटिन्यू करना है, तो इस चीज को आप फाइनेंस बिल के जरिए पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करोगे, और ये बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट होता है और राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है. समझ में आया? और पार्लियामेंट को 75 डेज के अंदर इस बिल को पास करना होता है. ओके. कंटिजेंसी फंड मतलब ऐसा फंड जो आपने अर्जेंसी के लिए रखा है. अनफोर्सीन अगर कोई खर्चा आ गया, कोई अनसर्टेनिटी हो गई, कोई अर्जेंसी आ गई, तो उसके लिए जो फंड आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड. और ये किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास. पहला अप्रूवल प्रेसिडेंट का, दूसरा अप्रूवल पार्लियामेंट का. और जो भी फंड आपने कंटिजेंसी फंड से लिया है वो आपको कंसोलिडेटेड फंड्स में से वापस करना पड़ेगा इन फ्यूचर. ओके. पब्लिक अकाउंट. पब्लिक अकाउंट मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट बैंकर की पोजीशन पे होता है और गवर्नमेंट के पास पब्लिक अकाउंट में पैसा होता है जो गवर्नमेंट का खुद का नहीं होता, जो गवर्नमेंट को पब्लिक को वापस करना पड़ता है. समझ में आया? जो गवर्नमेंट को पब्लिक को वापस करना पड़ता है. एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड. फिर रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अभी अपन ने बहुत बार देख ही लिए. रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रिकरिंग नेचर के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नॉन रिकरिंग नेचर के रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. समझ में आया? और ये पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रॉपर्ली बजट बनाना होगा तो.
कंसोलिडेटेड फंड्स को अगर आपको प्रॉपरली बाइफरकेट करना है तो ये पढ़ना आपको आना चाहिए। ठीक है, कितने तरीके के बजट होते हैं? 3। बोलो कौन कौन से? रेवेन्यू, कैपिटल और एक्सपेंडिचर, ऐसे 3 तरीके के आपके क्या होते हैं? बजट होते हैं। समझ में आया क्या? जहाँ पे एक्सपेंडिचर बजट क्या बोलते हैं? सिर्फ एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करो, साल भर में गवर्नमेंट ने कितने खर्चे किए उसको एस्टिमेट करो, ठीक है, कितना डिसबर्समेंट हुआ है उसको एस्टिमेट करो, प्लान हो या नॉन प्लान हो सबके एक एस्टिमेशन बनाओ, एक प्लान बनाओ, एक स्टेटमेंट बनाओ और पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करो। डिमांड फॉर ग्रांट्स भी इसी बजट का पार्ट है। मेजर बजट आपके 2 ही है, रेवेन्यू और कैपिटल। उसका रिवीजन तो ये चार्ट के जरिए हो जाएगा जो मैंने आपको बना के बताया, ये वाला चार्ट। ओके, सो ये रहा आपका बजट का चार्ट। 3 तरीके के बजट, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में 2 बातें, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में 2 बातें, टैक्स, नॉन टैक्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो ऐसे रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं, दैट इज व्हाट सैलरी। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में 2 बातें, कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीप्ट्स में 3 बातें, लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। ओके ओके, असेट्स का क्रिएशन या लायबिलिटी में रिडक्शन कैपिटल बजट में होता है, रेवेन्यू बजट में नहीं होता। और एट द लास्ट हम लोगों ने देखा फिस्कल डेफिसिट। सॉरी, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जहां पे आपकी इनकम कम है और खर्चे क्या है? ज्यादा है। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा और इनकम कम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और जिसको हम इन द परसेंटेज फॉर्म ऑफ जीडीपी में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? तो खर्चे तो रुकते नहीं ना भाई मेरे दीक्षिता, खर्चे तो करने ही पड़ते हैं। बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो मैं अवॉइड नहीं कर सकती, तो वो खर्चे तो मेरे को करने ही पड़ेंगे। और जब मैंने वो खर्चे कर दिए और इनकम तो कम ही थी तो क्या क्रिएट हो गया? फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो गया। कोई डाउट? एमसीक्यू डिस्कस करें? जल्दी बताओ, चैट बॉक्स आपका वेट कर रहा है, फटाफट। मेरे ख्याल से बहुत छोटा सा शॉर्ट सिंपल स्वीट चैप्टर था जो आराम से खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम टनाटन जवाब। यस, ओके। पहला पहला एमसीक्यू, the revenue expense is more than that of receipts, it indicates that there is a, obvious सी बात है, उल्टा उनने क्या बोला जब हम बात कर रहे हैं कि जब रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा है मोर देन ऑफ दैट रिसीप्ट्स, मतलब हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंस की। तो जब हम रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करते हैं तो वो कौन सा डेफिसिट होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। और जब हम टोटल की बात करते हैं तो वो किसकी बात करता है? जल्दी बताओ। जब मैं टोटल रिसीप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूंगी तो वो क्या कहलाता है? जल्दी, जब मैं डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम की बात करूंगी तो क्या कहलाता है? फिस्कल। वेरी गुड कुश, ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। और जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम के डिफरेंस के बीच की बात करूंगी तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। गुड। द डैश रिकॉर्ड्स ऑल द रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस बजट में इंक्लूड होते हैं? रेवेन्यू। मैम आपने तो पढ़ाया। यस। Government receipts which neither create asset nor reduce liability are called as, अब भी 4 बार पढ़ा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू बजट्स, ये लोग ना असेट क्रिएट करते और ना ही लाइबिलिटी को रिड्यूस करते। वो कौन करता? जल्दी बताओ, कहाँ होता है वो? क्रिएशन ऑफ असेट्स एंड रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। वेरी गुड। कैपिटल में होता है मैम वो। Which of the following is not covered under the revenue receipts? मैम कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी भी आती है। लोन फ्रॉम आरबीआई रेवेन्यू रिसीप्ट में नहीं आता। लोन फ्रॉम आरबीआई कहाँ आता है? कौन सी रिसीप्ट में आता है? जल्दी बताओ। लोन फ्रॉम आरबीआई, वेरी गुड, कैपिटल रिसीप्ट्स में आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट मीन्स आप सब लोगों को चीजें याद हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी इज कवर्ड अंडर विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, क्योंकि रिपीटेटिव नेचर का खर्चा है। सैलरी ऐसा थोड़ी ना 10 साल में एक बार बांटना है, वो तो रोज बटेगी ना यार, हर महीने बटेगी ना। गुड। फॉर द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ विच ईयर मर्ज द यूनियन बजट विद द रेल बजट which was usually presented separately?
25 बार याद कराया था ये 2017, अब तो याद भी हो जाना चाहिए आप लोगों को। और बताया भी था कि ये सब चीजों के ऊपर एमसीक्यू आ भी सकते हैं, लिख के भी दिया था एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। समझा क्या? The form in which estimates of expenditure for the consolidated funds are submitted is called, obviously estimated expenditure कौन से फॉर्म में सबमिट किया जाता है जो हम कंसोलिडेटेड फंड के जरिए एस्टिमेट करते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट। और रिकॉर्ड कौन से इसमें किए जाते हैं उसके वोट? in the pursuance of article, which article? Fast, let me know the article fast. In which article? In the pursuance of which article you record the things? Very good. 113. Very good. The relation to budgets, receipt may include tax, non-tax, everything, all of these. Yes. Dash refers to the estimate expenditure of government during a financial year. Dash refers to the estimated expenditure of the government during a financial year. Expenditure budget, जहाँ पे पूरे expenditure लोगे वो क्या रहेगा? Expenditure budget रहेगा. Revenue budget records all revenue receipts and revenue expenditure. Very good. Which of the following counts for loans from public loan from RBI expenditure towards बिल्डिंग एंड लॉन्ग टर्म असेट्स? यस, ये सारी चीजें किसमें आती है? कैपिटल बजट में। कैपिटल रिसीप्ट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। वेरी गुड। ये तो रिपीटेटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेटिव है, ये भी रिपीटेटिव है। Which of the following is incorrect? आंसर ही देखते क्या इनका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट revenue expenditure does not create an asset for the government. Revenue expenditure must not decrease the liability of the government. Revenue expenditure is also called as income statement expenditure. Revenue for acquiring assets is like land, building, etc. आपको क्या लगता है आंसर ये राइट है? Which of the following is incorrect? क्या पहला वाला इनकरेक्ट है? तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? चलो अच्छी बात है, गलत आंसर दिया, कम से कम आप तो बताओगे। और बाकियों को क्या लगता है? क्या सिर्फ दो ही लोग आंसर देंगे? क्या बाकियों को क्या लगता है? Yes, here A answer is not correct because it is the correct statement. हमको incorrect statement को consider करना है, तो answer will be D here. Very good. Okay, which of the element, which of these are the element of capital budget? Capital receipts and capital expenditure. Yes. Which of the following is not item for revenue receipt loan from RBI? Yes. फाइनेंस बिल का आर्टिकल क्या है? जल्दी बताओ, ऑप्शन नहीं दे रही, खुद ही बताओगे। फाइनेंस बिल का आर्टिकल अब भी रिवाइज करके है, जल्दी बताओ। वेरी गुड। सिर्फ सिद्धि को पता है क्या? सिद्धि गलत है, किसी और को इसका करेक्ट आंसर पता है? जल्दी बताओ। 110 110 110 110। वेरी गुड, द आंसर इज 110। फाइनेंस बिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। टैक्स से रिलेटेड प्रपोजल कौन से बिल में जाते हैं? फाइनेंस बिल में जाते हैं। वेरी गुड। So is it clear guys? Is it clear? So done with the chapter. So the chapter was clear or not? कोई doubt? क्या हम रुके आज के लिए यहाँ पे? Okay everyone, it was a great session. आज का क्लास बहुत ही अच्छा था, short, simple, sweet, एकदम और to the point, नो ज़्यादा बकवास। Okay guys, take care.